بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر سیکنڈ لینگویج عربک کی یہ ویڈیو ہے، اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تیار کیے گئے ہیں۔ 3 سیٹ تیار کیے گئے ہیں، اے بی سی۔ یہاں پہ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سیٹ بی ہے۔ سیٹ اے اور سی تینوں بھی ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے لنک موجود ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ 3 سیٹ اے بی سی آپ لوگوں کے آسانی کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ 3 پی ڈی ایف آپ صرف اور صرف 50 روپیز میں خریدے بغیر گزارش ہے آپ یوز نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کچھ محنت کر کے ہم تیار کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارا فائدہ ہی سوچنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس وجہ سے آپ یہ 3 سیٹ صرف اور صرف 50 روپیز میں ہے، سیٹ اے، سیٹ بی اور سیٹ سی۔ آپ میرے گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم 9700925140 ویسے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں بھی ہے، اس پہ ٹرانسفر کرنے کے بعد اسکرین شیئر کریں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ 3 پی ڈی ایف بھیج دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے 3 سیٹ دیکھیں، اے بی سی، اور تینوں بھی خرید کر پڑھیں، فری میں نہ پڑھیں۔ اگر کہیں سے مل بھی جائے تو مہربانی فرما کر آپ اس نمبر پہ 50 روپیز سینڈ کر دیں۔ تو 3 سیٹ بھی دیکھیں آپ، اور خاص طور پہ آپ سے گزارش ہے گرامر اچھی طرح دیکھیں اور پورے کوشچن کے آنسر لکھنے کی کوشش کریں آپ۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سیٹ سی دیکھیے، عربک ماڈل کوشچن پیپر انٹر سیکنڈ ایئر 2025، 100 مارکس سے 3 گھنٹے کا وقت رہے گا۔ بٹ نمبر 1، عجب عن احد مما یاتی، یہ 6 مارکس کی بٹ ہے۔ دیکھیے، attempt any one from the following: اکمل البیتین التالین واشرحہما، complete the following verses and explain them۔ بٹ نمبر 1 میں کسی بھی 2 پوئم کے ورسز رہیں گے، اور ان ورسز میں کچھ ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پی ڈی ایف میں جہاں پہ جو ورڈ ڈیلیٹ ہے، انشاءاللہ فائنل ایگزام میں بھی وہی ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے۔ انا فتى ڈیش ڈیش خلق ودین اسعى لنیل المجد ڈیش وجد دین، یہاں پہ اس کا آنسر ہے۔ دیکھیں، انا فتى امین لی خلق ودین اسعى لنیل المجد بہمت وجد دین۔ یہ تو پورا شعر ہے جو کمپلیٹ ہے۔ یہ اس کا ایکسپلینیشن لکھنا ہے، یہاں پہ ہے۔ دیکھیے ایکسپلینیشن، چاہے آپ انگلش میں لکھیں چاہے اردو میں لکھیں۔ بعض اسٹوڈنٹ کامنٹس میں پوچھتے ہیں کہ رومن اسکرپٹ میں ایگزام سمری لکھ سکتے یا نہیں۔ آپ سے میں ادباً گزارش کروں گا، سمری نہیں، کوئی بھی چیز رومن اسکرپٹ میں لکھنا نہیں ہے، وہ کوئی لینگویج ہی نہیں ہے رومن اسکرپٹ۔ رومن اسکرپٹ میں ہرگز نہ لکھیں۔ یہاں انگلش میں اس کا ایکسپلینیشن ہے، اور یہ اردو میں ہے۔ اس کے بعد اور ایک ہے، دیکھیں، اکمل البیتین التالین، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آنسر آپ کو لکھنا ہے۔ کمپلیٹ دا فالوئنگ ورس اینڈ ایکسپلین دم۔ ایھا الطلاب للمعالی وطلب العلم زین للرجال، یہاں پہ آنسر ہے۔ دیکھیں، ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی وطلب العلم فان العلم زین للرجال۔ آپ کے آسانی کے لیے جو ورڈ ڈیلیٹ ہے ان کو الگ کلر میں لکھ دیا گیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہی ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اسی کا ایکسپلینیشن اور ایکسپلینیشن ہے، دیکھیں یہاں پہ انگلش اور اردو میں ہے۔ اب ایکسپلینیشن لکھنا نہ بھولے، ہرگز نہیں۔ اور یہ وہی ریکویسٹ ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کی ہے کہ یہ 3 پی ڈی ایف اگر منگانا ہے تو مہربانی کر کے میرے اس نمبر پر گوگل پے، فون پے یا پے ٹی ایم پہ 50 روپیز سینڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں یہ 3 پی ڈی ایف آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور آپ دوسروں کو شیئر نہ کریں۔ خریدنے کے بعد ہی آپ خود استعمال کریں، دوسروں کو ہرگز شیئر نہ کریں۔ اس کے بعد یہ تھی بٹ نمبر 1۔ اس کے بعد ہے بٹ نمبر 2 اور 3۔ بٹ نمبر 2 اور 3 میں سمری ہے، اس میں سے سمری
यहाँ पे लिखी नहीं गई है ताकि आप किसी किताब से देखकर पढ़ लें। अगर आपके पास किताब ना हो तो यूट्यूब पर सर्च करें अरबिक इंटर सेकेंड ईयर बिट नंबर 2, पूरे समरी आ जाएंगे आप। और इसी तरह अरबिक इंटर सेकेंड ईयर बिट नंबर 3, पूरे सूरह और पूरे लेसन की समरी आ जाएंगे। इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा 4 सूरह पढ़ें, चार चार सूरों की समरी याद करें। ये थी बिट नंबर 2 और बिट नंबर 3 समरी है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है देखिए आपके सामने बिट नंबर 4। अजिब अन असइलतैन मिन अल आतिया फिल लुगा अल अरबिया, ये 8 मार्क्स की है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। अरबिक में क्वेश्चन के आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, अयन जलसा अल अस्दिक़ा, दोस्त कहां पर बैठे? जलसल अस्दिक़ा तहत अश-शजरति, दरख्त के नीचे बैठे। अयन वजदू कीसा अज़्ज़हब, सोने की थैली कहां मिली? वजदू कीसा अज़्ज़हब फी जिज़अ अश-शजरति, झाड़ के जड़ के नीचे मिली। क्वेश्चन नंबर 3, माज़ा सअल अल-लिस्सुल अव्वलु अल-वलदा, पहले लड़के ने क्या सवाल किया? सअल अल-लिस्सुल अव्वलु अल-वलदा हल इंदका मालुन, पहले चोर ने, पहले डाकू ने सवाल किया कि आपके पास पैसा है? क्वेश्चन नंबर 4, हल गय्यरा जाहिद अद-दनानीर अज़-ज़हबिया, क्या जाहिद सोने के सिक्कों को चेंज कर दिया था? नाम गय्यरा जाहिद अद-दनानीर अज़-ज़हबिया। ये थी बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में 4 ही क्वेश्चंस आएंगे और उसमें लिखा हुआ रहेगा आंसर एनी टू, लेकिन आप पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर लिखें, आप ऑप्शन में ना छोड़ें। उसके बाद आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बिट नंबर 5, मिन अय्यति उनशुदा हाज़िही अल अबियात अजिब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया। 6 मार्क्स से देखिए, गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। यहाँ पे कुछ पोयम के कुछ वर्सेस आएंगे, आपको पहचानना है कि ये वर्स कौन से पोयम का है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये वर्सेस पहचानने का एक हिंट रहता है, वो हिंट्स के साथ अगर पढ़ना है, खासतौर पे ग्रामर में भी अगर उस हिंट के साथ आपको पढ़ना है तो मेरी गुजारिश है आप 3 डेज में क्लास रखता हूं सेट ए बी सी का, उस वो क्लासेस ज्वाइन करें इंशाल्लाह। उसकी फीस रहेगी मगर फीस के साथ क्लासेस रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको हिंट के साथ पढ़ाया जाएगा और वो ऐड डाला जाएगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है एस तौकीर अहमद। अस्आ लिनैल मजदी बिहिम्मतिन व जिद्दिन। उसके बाद आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन्नज़म शाबुन नबील, ये शेर फला पोयम का है। कौन सी पोयम है? शाबुन नबील पोयम की है। अगर आप हाजा अशेर की जगह हाजा अल बैत लिखना चाहे तब भी लिख सकते, कोई हरज की बात नहीं है। वतलुबुल इल्म फ़इन्नल इल्म ज़ैनुल लिर्रिजाल, ये कौन सी पोयम के है? पहचानने के बाद इस तरह आंसर लिखना है, हाजा अशेर मिन अन्नज़म अय्युहत तुल्लाब। और एक शेर है देखिए, रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया, और ये शेर कौन सी पोयम का है? हाजा अशेर मिन अन्नज़म अलहम्द, ये शेर अलहम्द पोयम का है। उहिब्बुल इल्म मिन वलइन उहिब्बुल जिद्द ला अल कसला, ये कौन सी पोयम का है? हाजा अशेर मिन अन्नज़म उहिब्बु। शायद आपको बिट नंबर 5 समझ में आ चुकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 6। देखिए, मिन मिन अय्यि दरसिन हाज़िही अस्सुतूर अजिब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया, ये भी 6 मार्क्स की है। देखिए, गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। बिट नंबर 6 में प्रोज सेक्शंस के सेंटेंस आएंगे, आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन से लेसन के हैं। सूरह की आयत भी आएगी और लेसन के सेंटेंस भी आएंगे, आपको पहचानना होगा कि वो कौन से सूरह की है, सेंटेंस है तो वो कौन से लेसन की है। यहाँ पे देखिए, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, ये सूरह की आयत है, कौन से सूरह की है? पहचान कर आयत आंसर इस तरह लिखना है, हाज़िही अल आयतु मिन सूरह कुरैश। सेकंड, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये भी एक आयत है, कौन से सूरह की है? हाज़िही अल आया मिन सूरह अल माऊन।
उसके बाद ये एक सेंटेंस है, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से लेसन की है। पहचान कर इस तरह आंसर लिखना है। हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अय्युहा अत्तुल्लाब। हाजा अस्सतर, ये लाइन फला लेसन की है, लेसन का नाम लिख देना है। या आप इस जगह अगर हाजी ही अल इबारतु भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। आपके उस्ताद मोहतरम ने जो प्रैक्टिस कराई है करिए आप। उसके बाद ये एक सेंटेंस है, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से लेसन की है। पहचान कर आंसर इस तरह लिखना है। हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स माजा तुहिब्बु अन तकूना। यहां पर भी बिट नंबर 6 में भी हिंट्स है। हिंट के जरिए से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी लाइन कौन से लेसन की है। अगर ये जानकर आपको पढ़ना है तो वही 3 दिन की क्लासेस ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और उसका ऐड मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे डालूंगा, आप वहां से देखकर ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी कुछ फीस रहेगी मगर। उसके बाद बिट नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अजीब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया। ये 6 मार्क्स की है, देखिए। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ही क्वेश्चन, बिट नंबर 7 में 4 ही क्वेश्चन आएंगे। इस बिट में सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहां पर एहतियातन 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। और 4 में से, इन 7 में से कोई 4 आएंगे और 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना है। मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ 2 के आंसर ना लिखें बल्कि पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, मा हिया जीनतुल मरई। आदमी की खूबसूरती क्या है? अल इल्म जीनतुल मरई, इल्म आदमी की खूबसूरती है। बेअय्यि शैइन यहसुलु अल मज्द, तरक्की किस चीज से हासिल होती है? यहसुलुल मज्दु बिहिम्मतिन व जिद्दिन, कामयाबी और तरक्की हिम्मत और मेहनत से हासिल होती है। कैफ नतलुबुल इज्जा, हम इज्जत कैसे हासिल करें? नतलुबुल इज्जा बिल इत्तिहाद, हम इज्जत इत्तिहाद के जरिए से हासिल कर सकते हैं। हल तगदु लिहिफ्ज़ि दर्स, क्या आप अपना लेसन याद करते हो? नाम अगदु लिहिफ्ज़ि दर्स, हाँ मैं अपना लेसन याद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, माजा खैरु फ़आलिन, सबसे बेहतरीन काम क्या है? खिदमतु कौमिन खैरु फ़आलिन, सबसे बेहतरीन काम कौम की खिदमत करना है। बस जगह बस किताबों में अस्सिद्क़ खैरु फ़आलिन लिखा हुआ है, सच बोलना सबसे बेहतरीन काम है, लेकिन मुझे ये सही दिखता है खिदमतु कौमिन। क्वेश्चन नंबर 6, मा हिया खैरुल गर्स फिल उनशुदा, पोयम में सबसे बेहतरीन पौधा क्या है? अल इल्म खैरुल गर्स फिल उनशुदा, सबसे बेहतरीन पौधा इल्म है। क्वेश्चन नंबर 7, कैफ अखलाकुल फता, जवान के अखलाक, नौजवान लड़के के अखलाक कैसे हैं? अखलाकुल फता तय्यिबुन, नौजवान लड़के के अखलाक अच्छे हैं। उसके बाद बिट नंबर 7 है, ये 7 थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 8। अजीब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया, ये 6 मार्क्स की है, देखे। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक, अरबिक में क्वेश्चन के आंसर लिखना है। यहां पर भी इस बिट में भी सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे। इन 4 में से 2 के आंसर आपको लिखना रहेगा। लेकिन यहां पर एहतियातन 7 क्वेश्चन और उसके आंसर दिए गए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप जितने क्वेश्चंस इस बिट में आते हो, आप उन तमाम का आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, मा काना मौजूअ दर्स, लेसन की टॉपिक क्या है? मौजूअ दर्स मज़ाहिरुल आलम, लेसन की टॉपिक मज़ाहिरुल आलम है। क्वेश्चन नंबर 2, माजा क़ालत फातिमा, फातिमा ने क्या कहा? क़ालत फातिमा उहिब्बु अन अकूना तबीबा, फातिमा ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मिन ऐन तखरुजुल अज़हार वल अस्मार, अज़हार फूल, अस्मार फल, फल और फूल कहां से निकलते हैं? तखरुजुल अज़हार वल अस्मार मिनल अर्ज़, फूल और फल जमीन से निकलते हैं। माजा क़ाल अल मुअल्लिम लित्तलबा, उस्ताद ने स्टूडेंट से क्या कहा? क़ाल अल मुअल्लिम लित्तलबा, उस्ताद ने टीचर से कहा, उस्ताद ने स्टूडेंट से कहा। क्वेश्चन है, माजा क़ाल अल मुअल्लिम लित्तलबा, उस्ताद ने स्टूडेंट से क्या कहा?
قال المعلم للطلبة احسنتم ولكن كونوا مسلمين. استاد نے اسٹوڈنٹ سے کہا احسنتم بہت اچھا ہے ولكن كونوا مسلمين لیکن پہلے سب سے پہلے سچے اور پکے مسلمان بنو. کوشچن نمبر 5 حل آ گیا اس کا آنسر نعم ہے. حل الماء ينزل من السماء کیا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ نعم الماء ينزل من السماء ہاں پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے. ماذا سأل المعلم التلاميذ في الصف استاد کلاس میں اپنے بچوں سے کیا سوال کرے؟ سأل المعلم التلاميذ في الصف عن هدفهم استاد نے کلاس میں اپنے بچوں سے ان کے ایم مقصد کے بارے میں پوچھا کہ آگے کیا بننا چاہ رہے ہو. کوشچن نمبر 7 اجعل فيها الشمس والقمر والنجوم ضیاء کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں چاند سورج اور ستاروں کو روشن بنایا ہے؟ آ گیا اس کا آنسر نعم. نعم جعل فيها الشمس والقمر والنجوم ضیاء ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں چاند سورج اور تاروں کو روشن بنایا ہے. ضیاء کے معنی روشن. اس کے بعد ہم اور آگے پڑھیں گے بٹ نمبر 9 آپ کے اسکرین پر شاید دکھائی دے رہا ہے. کوشچن نمبر بٹ نمبر 9 اجب عن الاثنين في اللغه العربيه بكلمه واحده 5 مارکس. یہ دیکھیں آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ میں آنسر لکھنا ہے. اس بٹ میں صرف 5 کوشچن آئیں گے لیکن احتیاطاً 6 لکھ دیے گئے ہیں. 6 پڑھ لیے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. من تصحب آپ کس کے ساتھ رہتے ہو؟ الاخیار نیک لوگوں کے ساتھ. خدمت قوم خیر فعال کیا قوم کی خدمت کرنا بہت اچھا کام ہے؟ نعم ہاں. ماذا تفعل لنیل المجد آپ ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس کا آنسر ہے اجتہد محنت کرتا ہوں. ای شیء لازم للقوم قوم کے لیے کیا ضروری ہے؟ الخدمت. ما هو المطلوب بالاتحاد والاتصال مل جل کر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ العز والشرف عزت اور شرافت حاصل ہوتی ہے. هل انت فتى امین کیا آپ ایک امانت دار نوجوان ہو؟ اس کا آنسر ہے نعم ہاں میں ایک امانت دار نوجوان ہوں. اس کے بعد یہ آپ کے اسکرین پہ ہے بٹ نمبر 10 اجب عن الاثنين في اللغه العربيه بكلمه واحده یہ 5 مارکس کی ہے. آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ. کوشچن نمبر 1 من خلق العالم دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. یہاں پر بھی ایک بات عرض کر دوں اس کوشچن میں بھی صرف اور صرف 5 ہی کوشچن آئیں گے آپشن میں کوئی نہیں چھوڑنا ہے. یہاں پہ 2 میں نے احتیاطاً دے دیا ہے. کوشچن نمبر 2 ماذا قال ابرار نے کیا کہا؟ احب ان اكون فلاحا ابرار نے کہا کہ میں کسان بننا چاہتا ہوں. کوشچن نمبر 3 ای شیء بغیر عمد بغیر پلر کے کون سی چیز ہے؟ اس کا آنسر ہے آسمان. کیف الازہار پھول کیسے ہیں؟ جمیلہ خوبصورت ہے. هل سلمان يحب ان يكون طبيبا کیا سلمان ڈاکٹر بننا چاہا؟ اس کا آنسر ہے لا نہیں ڈاکٹر بننا نہیں چاہا. ہر جگہ حل کا آنسر نام رہتا لیکن یہاں پہ لا نہیں ہے. 2 جگہ ہے جہاں پہ اس کا آنسر نام نہیں ہے لا رہے گا. کوشچن نمبر 6 من قرأ الدرس لیسن کس نے پڑھا؟ المعلم. کوشچن نمبر 7 هل المال نعمت من اللہ کیا دولت اللہ کی نعمت ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم ہاں. یہ تھی بٹ نمبر 10. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے بٹ نمبر 11 ہے یہ جس میں آپ کو پیسج لکھنا ہے. اجب عن واحد مما یأتی 5 مارکس کی ہے. attempt any one of the following اکتب رسالتا الى مدیر الشرکہ لوظیفۃ المترجم. ایک بات میں آپ کو بتا دوں بٹ نمبر 11 میں پیسجز آئیں گے اور ٹوٹل آپ کو لیٹر آئیں گے. سوری بٹ نمبر 11 میں لیٹر آئے گا اور ٹوٹل 3 لیٹر ہے. آپ ان تینوں میں سے کوئی 2 اچھے یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بٹ نمبر سیٹ اے میں 2 لیٹر جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اکتب رسالتا الى مدیر الشرکہ لوظیفۃ المترجم write a letter to the director of company for translator job. پھر یہ دوسرا ہے اکتب رسالتا الى والدک المحترم لارسال النقد لدفع الرسوم
ये आंसर है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। तारीख, जो भी तारीख जिस दिन की आप लिख रहे हैं डेट, जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हो उस दिन की डेट डाल सकते हैं, पूरा इंग्लिश में। 4 अक्टूबर नहीं, या फिर कोई 3 4 ऐसा लिख दीजिए। इला मुदीर अशरीका, कंपनी के डायरेक्टर को। टॉपिक क्या है? अल मौजू तलबुल वजीफतिल मुतरजिम सय्यदी। हाँ, ट्रांसलेटर जॉब का हासिल करना है। सय्यदी सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम का जवाब देना है। और रसूल तफासिल शख्सिया, बायोडाटा लिमन सबिल मुतरजिम। यहाँ पे मैं बायोडाटा भेज रहा हूँ ट्रांसलेटर जॉब के लिए। अल इस्म अब्दुल्लाह, पहले सबसे पहले नाम लिखना, अपना नाम लिखिए यहाँ पे। तारीखुल मीलाद, यहाँ पे है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन डेट लिख रहे हैं, जिस डेट को आप एग्जाम लिख रहे हैं उस दिन की डेट नहीं, बल्कि तारीख पैदाइश। अल मुअहलात अल अकादमिया, क्वालिफिकेशन, माजिस्टर फिल अदब। रकमुल जब्बाल, फोन नंबर, जो भी फोन नंबर लिखना है लिख दीजिए। शाकिरन लक, आपका शुक्रिया। तौकी, तौकी माने सिग्नेचर करना है। उसके बाद और एक लेटर है जो आपके आसानी के लिए तैयार किया गया है। ये लेटर फर्स्ट सेट ए में आया था ये, आप वहीं पर पढ़ ले तो अच्छा है, सेट ए में। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये खास तौर पे ग्रामर आप अच्छी तरह तवज्जो देकर पढ़े, बहुत जरूरी है ये। अजिब अनिल असीला अल आतिया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। عين المركب التوصيفي في 4 جمل مذكورة أدناه. 4 marks. Identify subject subjective phrase in any 4 of the following sentence. Number 1. محمود طالب كسلان. الطبيبة الماهرة موجودة. المهندسة. ये जितने भी सेंटेंस है इनमें से एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, उन दोनों को अंडरलाइन करना है। और बहुत आसान तरीका है, इसके भी कुछ हिंट है। आप अगर क्लास ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ये हिंट के जरिए से समझाऊंगा मैं। यहाँ पे आंसर लिखे हुए देखिए। अत्तुफाह फाकिहतुन लजीज, अल तौसीफी, अल तौसीफी। उसके बाद सेकंड बिट है देखिए। अगेन अल जुमला अल फेलिया फी अरबाती जुमल मज़कूरतिन अदनाहु। आइडेंटिफाई वर्बल सेंटेंस इन योर ओन लैंग्वेज इन दिस सेंटेंस। ये भी 4 मार्क्स है देखिए। यहाँ पे देखिए, इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस वर्बल सेंटेंस है पहचानना है, और यहाँ पे पूरा आंसर के साथ है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, पूरे हिंट के साथ पढ़ना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9700925140 पर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं कांटेक्ट करूंगा। देखिए, कतब अल वलद अल अजविबा, ये आइडेंटिफाई नहीं है। अल मुदीर अल जदीदा हाजिरा, ये भी जुमले इसमिया नहीं है। ये जुमले इसमिया नहीं है, जुमले फेलिया है, इसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे पूरा आंसर लिखे हुए देखें। كتب الولد الأجوبة الجملة الفعلية. حفظ الرجل الدرس الجملة الفعلية. دخل الطالب الفصل الجملة الفعلية. فهم ياسر سورة الأسر الجملة الفعلية. उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 भी बहुत आसान है। अजिब अनिल इसमिन फकत एंड अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 8 मार्क्स ये देखिए। यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, इन 4 में से ही आएंगे कोई 2। उक्तुब अल जुज़अइन मिनल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी बिल अमसिला। मुरक्कब इजाफी के 2 एग्जाम्पल लिखिए, 2 वर्ड लिखिए एग्जाम्पल के साथ। नंबर 1 अल मुजाफ अल मुजाफिले। फर्स्ट वर्ड का नाम मुजाफ, सेकंड का नाम मुजाफिले। जैसे मिसाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। उक्तुब अल जुज़ैन मिनल मुरक्कब अत तौसीफी बिल अमसिला। मुरक्कब तौसीफी को लिखिए, इसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं, उन दोनों के नाम अलग अलग है। नंबर 1 अल मौसूफ, नंबर 2 अस्सिफत। मिसाल अल कुरआन अल करीम। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल जुमला अल इस्मिया। जुमले फेलिया को आइडेंटिफाई करिए। उसकी मिसाल देखिए, अल मुब्तदा अल खबर। मिसाल है अल्लाह वाहिद।
थर्ड वन, उक्तुब अज्जा अल जुमला अल फेलिया बिल अमसिला, जुमले फेलिया को पहचानिए एग्जाम्पल के साथ। तीन एग्जाम अज्जा रहते हैं इसके, अल-फेल, अल-फाइल, अल-मफूल। उसके बाद फिर मिसाल है इस तरह, बासा अल्लाहु ar-रसूला। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 14। 14 तो बहुत आसान है, या पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको। हव्विल अरबात अफाल मिन अल-फ़िल मुज़ारि इला फ़िल अम्र मिन अत-तालिया, या फ़िल अम्र रहेगा, फ़िल अम्र से फ़िल अम्र में बदलना है, और बहुत आसान तरीका है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हटाकर अलिफ लिख देना है उसकी जगह पर, खत्म, आंसर कंप्लीट। शायद समझ में आ चुका है आपको। उसके बाद बिट नंबर 14 की ही सेक्शन बी है, देखिए। हव्विल अरबात अफ़आल मिन अल-फ़िल मुज़ारि इला फ़िल अम्र बिल अमसिला, गिव द रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू प्रोहिबिटिव फॉर्म। इसमें कुछ भी हटाना नहीं है, ये क्वेश्चन में है। सिर्फ स्टार्टिंग में लाम अलिफ ऐड करना है, आपको लिखना है लाम अलिफ पूर्व में, हटाना कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 15, इमला सित्तता फरागत बिकलिमा मुनासिबा मज़कूरतिन अदनाहु। सुटेबल वर्ड से इसको कंप्लीट करना है। नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस रहेंगे, इनमें से कौन सा वर्ड कहाँ पे सूट हो रहा है वो आपको चेक करना है। हामिद व नबील व अम्मार, क्या है देखिए आप। नहनु तुज्जार, हम मुखलिस ताजिर है, यहाँ पे क्या आता देखना है अब। आयशा व नबीला व फातिमा, उलाइका औलाद, यहाँ पे देखिए आंसर के साथ है, मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। मुज्तहिदून, हार्ड वर्क करने वाले। तालिबात, स्टूडेंट्स। खदीमतुन, पुराना। मुखलिसून, नेक लोग। अत्ताविला, बेंच। जदीद, नया। अस्दिका, दोस्त। जमीला, खूबसूरत। मदीरा, मुदीर, मुदीर प्रिंसिपल। आंसर देखिए, हामिद व नबील व अम्मार अस्दिका, हामिद नबील अम्मार दोस्त है। नहनु तुज्जार मुखलिसून, हम नेक दिल तिजारतमंद है। आयशा व फातिमा व नबीला व तालिबात, आयशा, फातिमा और नबीला दोनों, ये तीनों सहेलियां हैं, तालिबात स्टूडेंट्स हैं। उलाइका मुज्तहिदून, वो सब लड़के मेहनती हैं। मुदीर उल कुल्लिया रजुल बैंक, बैंक का मुदीर नेक आदमी है। तिल्का हदीक़तुन जमीलतुन, वो खूबसूरत पार्क है। अल मफातिह अला अत्ताबिला, उन चाबियां टेबल के ऊपर है। हाज़िही सय्यारतुन क़दीमा, ये पुरानी कार है। अना तालिबुन जदीदुन, मैं नया स्टूडेंट हूँ। ये एक आप अच्छी तरह याद कर लें। ये है बिट नंबर 16, कुम बितस्हीह खम्स जुमल मिन अल आतिया, 5 मार्क्स की है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस आएंगे जो रॉन्ग रहेंगे, उन उन रॉन्ग सेंटेंस को आप करेक्ट करना है। सजदा फिल मस्जिद अल इमाम, हामिद नबी, हामिद तालिबुन जकिया, दखला फातिमा अल फसला। यहाँ देखिए पूरा आंसर है इसके साथ। सजदा अल इमाम फिल मस्जिद, मस्जिद में इमाम साहब ने सजदा किया। ये भी हिंट के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे वो 3 दिन क्लासेस ज्वाइन करें, इंशाल्लाह पूरे हिंट के साथ पढ़ाया जाएगा। हामिद तालिबुन ज़कीयुन, ये सही है। दखलत फातिमा तो अल फसला, ये भी सही है। अल बनातु मुस्तहिदातुन, लड़कियां नेक और मेहनती हैं। कैफा मुदीर अल कुल्लिया, कॉलेज का प्रिंसिपल कैसा है। महमूद तालिबुन कस्लानुन, महमूद किसान इंसान है, किसान स्टूडेंट है। कलमुल वलदी फिल जेब, उसका पेन जेब में है। हम औलादुन सिगार, हम सब छोटे बच्चे हैं। ये थी बिट सेट बी, सेट बी के 16 सेक्शन, 16 सेक्शन थे। इसी में से भी, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये भी तैयारी करके रखें। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं सेट सी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।